Here we Yes, go through the last two paragraphs of this page, and I hope I'll not get any unnecessary sound of on behalf of children. Here we go. How did you get here, child? I explained these two paragraphs yesterday, however, I am going to revise it. एक आदमी, there was a person who met the child and asked, how did you hear? कैसे तुम यहाँ आ गए? Whose baby are you? किसके बच्चे हो? The man asked if he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried. The child was bitterly crying. He was only crying in the expectations to get his parents. I want my mother, I want my father. He was only crying for his parents. सिर्फ माँ बाप के लिए चिल्ला रहा था. Then a man tried to soothe him. उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है वो आदमी कि मैं कुछ करूं जिससे इस बच्चे का दिमाग थोड़ा डाइवर्जन में आए और ये रोना बंद करे. He gently indicated that would you like to enjoy round about? क्या तुम झूले पर उस राउंड अबाउट पे enjoy करना चाहोगे? Will you have a ride on the horse? क्या तुम हॉर्स पे enjoy करना चाहोगे? He gently asked as he approached to the ring, और वो रिंग की तरफ धीरे धीरे बच्चे को लेकर बढ़ने लगा. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother. बच्चे का जो होठ था, जो मुंह था, बिल्कुल सूख गया था और वो सिर्फ 1,000 बार एक ही चीज़ रट रहा था, एक ही चीज़ बोल रहा था. वो क्या था? आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं. फाइनली क्या होता है? द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. The man took the baby towards the snake charmer. जो सपेरा था उसके तरफ बच्चे को लेकर वो जाता है. स्टिल प्लेड, हु वाज स्टिल प्लेइंग विद हिज फ्लूट, वो अपनी बांसुरी बजा ही रहा था और उसके सामने एक कोबरा स्वैंग हिलाया जा रहा था, झूल रहा था. आई मीन ही वॉज डांसिंग, यू कैन से. कोबरा वॉज डांसिंग. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. देखो कितना अच्छा बज रहा है बेटा. ही प्लीडेड, ही रिक्वेस्टेड, he wants to give a polite request to the child to listen the music so that he would be getting diversion and he'll not cry anymore. But the child shut his ears. लेकिन बच्चा अपने कानों को बंद कर लिया. wow, with his finger अपने कानों से, and shouted his double pitched stamp, I want my mother, I want my father. और बच्चा और ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ के चिल्लाया जा रहा था कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप चाहिए. The man took him near the balloons. वो बैलून्स के पास लेकर जाता है. Thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. हो सकता है the rainbow color, the bright colors of balloons would attract the child and he will be attracted towards and tempted towards the balloons to get it. लेकिन बच्चा कोई असर नहीं ले रहा है. बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसका बहुत बड़ा कुछ खो गया है. जाहिर सी बात है भाई, माँ बाप खोए हुए हैं. वुड यू लाइक टू अ रेनबो? आदमी पूछता है, क्या तुम पूरा 7 कलर का बैलून्स लोगे? कलर्ड बैलून्स, कलरफुल, रंगीन. ही परसुएसिवली आस्क्ड. वो बिल्कुल एक इंटेंशन, इरादे से पूछता है कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है बच्चे का जो डाइवर्जन है माइंड का वो डाइवर्ट हो. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड अगेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मोस्टली द चाइल्ड वॉज क्राइंग. He was not agree to listen a single word about anything else, and he did not like what was offered by the man. Firstly, what happened at the beginning time when he was taken to the fair by his parents, he required so many things like sweets, balloons, and toys, but they refused to provide him. The child was murmuring only. The child was only murmuring and whispering, but he was not determined to get that. But here, the same thing is being provided by the man only to give him a diversion so that he'll not cry, but the child does not accept anything. क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है.
द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो आदमी बच्चे को खुश करने की सोच रहा है. बोर हिम द गेट वेयर द फ्लावर्स सेलर सैट. अब आपको याद होगा, once there was a time when the child required and requested for the flowers garland. वो फूलों की माला के लिए भी जो है लालायित होता है कि मुझे फूलों की माला चाहिए. बट हिज पेरेंट रिफ्यूज्ड, लेकिन उसके माँ बाप रिफ्यूज़ कर देते हैं. बट हियर द मैन इज ऑफरिंग द चाइल्ड द सेम फ्लावर्स गार्लैंड, बट डज ही एक्सेप्ट? क्या वो एक्सेप्ट करता है? कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? क्या तुम इनको स्मेल करोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम एक गार्लैंड लोगे? बट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड? लेट अस नो in the last paragraph of this chapter. First of all, let me erase all the underlines. Here, the child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. Again, he speaks the same. I want my mother, I want my father. मुझे मेरे माँ बाप ही चाहिए. छोटा सा बच्चा है, काफ़ी दुखी है इस चीज़ से दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप को खो चुका है. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. अब वो मिठाइयाँ देने की कोशिश करता है. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट्स शॉप. अब स्वीट शॉप पे लेके जाता है. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? क्या मिठाई खाओगे तुम? कौन सी मिठाई तुमको बहुत पसंद है? ही आस्क्ड द चाइल्ड, turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. So this is the ending of this chapter. Finally, the child was rigid and determined to get his parents. He does not like anything else. The child's actual and true attention and affection, compassion is to get his parents back. सिर्फ अपने माँ बाप को वापस पाने के लिए बच्चा परेशान है. अभी आपने बिगनिंग में पढ़ा कि बच्चे को ये सारी चीज़ें चाहिए थी. दैट द मैन इज़ ऑफरिंग, जो मैन ऑफ़र कर रहा है. लेकिन वो बच्चा अपने पेरेंट्स को जानता था कि मैं मांगूंगा तो ये लोग दिलाएंगे नहीं. ठीक है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक बार कोल्ड स्टोर पे आइसक्रीम के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आइसक्रीम भी नहीं दिलाई. फिर उसके बाद बच्चे ने सिर्फ मर्मरिंग विस्परिंग, सिर्फ धीरे से बोलता था मिठाई चाहिए, बैलून्स चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप उसको नहीं दिला रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब थे. फिर बच्चा कोई रिजिडनेस नहीं, कोई जिद नहीं, कोई हार्डनेस नहीं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. बच्चा धीरे से आगे बढ़ जाता था. फिर उसकी माँ उसको डाइवर्ट करती है किसके तरफ? मस्टर्ड फील्ड के तरफ, और वो बच्चा उसके तरफ डाइवर्ट हो जाता है. ही गेज्ड अप टू द हाइट ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज. वो उस ऊंचाई तक देखता है. वेयर कुड ही सी, जहाँ पे वो देख सकता है, जितना देख सकता है. क्योंकि मम्मी ने जो डाइवर्जन दिया था, बीइंग प्रेजेंट देयर, शी गेव अ डाइवर्जन. वो एक डाइवर्जन देती हैं उस बच्चे को. लेकिन यहाँ पे जो डाइवर्जन दिया जा रहा है वो डाइवर्जन क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को ही खो चुका है. ठीक है, तो आई होप इट वुड बी क्लियर टू एवरीबडी. रिप्लाई मी. किसी को कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में तो पूछ सकता है. चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताएंगे. कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ फेयर गए हैं? हैव यू एवर गॉन विद योर पेरेंट्स टू द फेयर? Yes, sir. अच्छा. Sir. व्हाट हैपेंड विद यू? वन बाय वन शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस. सबसे पहले कौन बताएगा? चलो मैं बोलता हूँ. कौन बताएगा? जया बताएगी. चलो.
जया, यस सर। क्या हुआ बेटा, क्यों शांत हो गई तुम? सोच रही हो क्या? यस सर, हम दीदी भैया के साथ बस गए हैं और पापा मम्मी के साथ नहीं गए हैं। तो हुआ क्या, जैसे इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया वैसे 2-3 लाइन बताओ, 4-5 पॉइंट्स। सर हम भी मेले में खो गए थे। अरे वाह, हम भी मेले में खो गए थे। देन व्हाट हैपेंड विद यू? व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हैव। यू कैन क्रिएट अ चार्मिंग स्टोरी अबाउट दैट इंसिडेंट। कुछ बताओ। तो मैं भी अपने मम्मी और पापा को ढूंढ रही थी। मैं तब बहुत छोटी थी, कोई मुझे जानता नहीं था, बट एक भैया थे हाँ। और वो मुझे जानते थे, वो घर तक ला के छोड़ के। अच्छा, तो तुमको वो भैया नहीं कुछ दिलाए? नो सर, वो इधर डाइवर्ट मेरे, वो भी मेरी माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे दिखा के, बट कुछ नहीं बोले। मम्मी पापा को मैं बोल रही थी। अच्छा, सिर्फ मम्मी पापा बोल रही थी। तो फाइनली आप घर पे आ गए। चलिए, श्रुति वर्मा बताएं, तुम कभी खोई हो? यस सर। अच्छा। सर गए हैं सर, लेकिन फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मम्मी पापा के साथ फेयर नहीं गई? नो अच्छा, मतलब बचपन से ही तुम मम्मी पापा के साथ कभी मेले में नहीं गई? सर, मेले में नहीं गए सर, लेकिन घूमने वगैरह जाते हैं, मेले में नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों, मेले में क्यों नहीं जाते? सर सर मम्मी जाती नहीं है, पापा बिजी रहते हैं। अच्छा, ही इज वेरी बिजी मैन। ओके, यस एनीबडी सर। एल्स, एनीबडी एल्स, अनदर पार्टिसिपेंट? लाइक अलंकृता मिश्रा। अभी बात करने की बारी आई, यस सारे सर। के सारे पार्टिसिपेंट आउट ऑफ ग्रुप हो गए। वाओ। चलिए, आप लोग चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर राइट कर लीजिएगा। सर इफ यू डोंट माइंड तो आप बताइए, आप भी तो गए होंगे ना अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा, मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ था? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली। Once upon a time, when I was 7 years old, I went to the fair of Ghoshi, okay, along with my parents, and I was enjoying lots of there, and I was pointing out my fingers, whatever was charming and tempting me. Firstly, I saw a man who was having lots of flutes and he was playing with it. He was making different kinds of sounds and I liked it a lot. Thereafter, I stepped a few and I saw a man who was having a snake around his neck and I was scared of that. I began to cry. I began to climb up to the lap of my mother. Mom, 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 there is a snake and he is about to bite me. I don't want to stay anymore here in this fair. Please get off from here. Please, 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 I began to cry. They controlled me and they just moved me from there, from that place, so that I could not see that again. Thereafter, I went to the, the well of death. Okay, have you heard about well of death? मौत का कुआं. Yes. Aisha, Yes, sir. Aisha, so many riders with car and bikes. They were riding in the well, and it was so adventurous and risky. Okay, I paid 50 rupees for ticket, and I go there to see the performance of them, and I enjoyed it a lot. Thereafter, when I turned back, I did not see my parents anywhere, and it was only a misunderstanding. Okay, I was near the death's well in the garden where the performers were performing with their car and bike, but my parents were standing outside. Okay, they were saying me
that we are here, but I did not get their voice and I began to cry. Where is my mom, where is my father? I began to cry. There was a person who began to convince me that what happened beta, how are you here, kya kar rahe ho tum, what are you doing? I told him that I was only watching the performance and I have lost my mom and father. So he began to uh, tease me that okay, I'll help you. And after some time my father came to me that we are here, you nonsense, I am crying but you didn't get me. So I went. It was only an incident for some time. It happened with me for 5 minutes. Thereafter I became very normal and I enjoyed the rest of the fear and then came back to my home. Have you got it? Yes, sir. अच्छा, ये स्टोरी एक क्रिएशन था, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ है. ठीक है. अब मैं तुम लोगों को यही कहता हूँ कि एक इंग्लिश के जो स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें वास्तव में घटी हैं उन्हीं को हम लिखें या उन्हीं को. क्रिएशन भी एक आर्ट होता है. क्यों Yes, कि हम sir. बनावटी चीज़ों को क्रिएट करें. अब क्रिएशन तो वही कर पाएगा जिसके पास स्किल हो, क्रिएटिविटी हो, वो चीज़ों को सोच, थिंकिंग पावर हो, किसी भी चीज़ को आइडिया के तौर में थिंक करना, प्लस उसको फिर ट्रांसलेट करना, फिर उसको लिखना. दीज ऑल आर स्किल्स. राइटिंग स्किल, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, क्रिएटिंग, ये सब स्किल्स हैं. तो मैंने अभी क्रिएट करके आपको 5 मिनट की स्टोरी बता दी. आपको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? No, sir. Sir, बिल्कुल नहीं. हाँ, तो दिस इज़ द कॉल, आई मीन क्रिएशन. ओके, क्रिएटिविटी. तो आप लोग भी इसको सीखिए, झूठी कहानी बनाना. ठीक है, मतलब रियल लाइफ में नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जैसे आपकी क्रिएटिविटी अगर चेक की जाए तो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकें. ये नहीं कि झूठी झूठी कहानी बताएं मम्मी पापा से और टीचर्स से. ठीक है, Yes. चलिए, विश यू ऑल द Yes, बेस्ट sir. एवरीवन. Thank you, sir. वेलकम. Sir.